Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, yesterday we have started this chapter. This is generations of computer. And in this chapter we have seen that generation means what? Generation means remarkable improvement in any product. So remarkable improvement in any product we call जनरेशन जनरेशन मीन्स क्या किसी प्रोडक्ट में जब एक बहुत बड़ा चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट ठीक है so we can say that generations of computer means remarkable improvement in growth and development in computer technology तो computer technology में growth और development जो हुई तो हम उसे क्या कह सकते हैं we can say that वहाँ पे क्या हुई है remarkable improvement हुई है तो वो मतलब उसकी हम generations को मान सकते हैं ओके now class moving ahead the different computer generations are categorized according to their technology of basic computing element तो computing element के basis पे क्या हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है कंप्यूटर कैटेगराइज किया गया तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जो कि सबसे पहले क्या हुए आए now so the first generation's computer started in 1946 so the first generation's computer they started in 1946 its makers used thousands of vacuum tube which were often used taking up the space of the entire room so they ended up taking the space of the entire room so this was the first generation's computer they were very expensive used huge amount of electricity and generated lots of heat so these computers were what these computers were very expensive ये computer बहुत expensive होते थे this I have told you ये computers क्या होते थे these computers were very expensive and they used huge amount of electricity and generated lots of heat first generations of computer used the machine language which was the lowest level of the programming language first generation of computer they used the machine language and it was the lowest generation of the कंप्यूटर तो सबसे पहले पहले क्या होता था कंप्यूटर जो होते थे बहुत बड़े साइज के होते थे लेटर ऑन क्या हुआ कंप्यूटर की साइज को क्या किया गया छोटा छोटा किया गया ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये स्टार्टेड इन 1946 इट्स मेकर्स यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब which were often used taking up the space of the entire room it takes up the space of the entire room they were very expensive ये कंप्यूटर क्या होते थे बहुत महंगे होते थे ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते थे दे यूज द यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी now and they generated the lots of it the first generation computer used the machine language which was the lowest level of the programming language the first generation of the computer they uses the machine language ये क्या यूज करते थे मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे जो कि क्या था लोएस्ट लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनमें क्या उनकी बेनिफिट उनकी खासियत क्या होती है वो ये होती है कि ये कंप्यूटर क्या करते हैं बहुत ही इजीली क्या करते हैं ये कंप्यूटर समझ जाते हैं मतलब ये कंप्यूटर क्या करते हैं बहुत ही इजीली ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझ जाते हैं सो द साइज वॉज वेरी बिग साइज ऑफ दिस कंप्यूटर्स वर वेरी बिग बहुत बड़ी साइज होती थी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत लो होता था और स्लो होता था they were very expensive they used the device called the vacuum tube they used the device which we call the vacuum tube उन devices को हम कहते हैं क्या कहते हैं we call them the vacuum tube okay now the next point क्या है हमारे पास after this the next point is ENIAC and the UNIVAC are the examples of the first generation computer के examples हैं ENIAC and UNIVAC now moving ahead drawback of the first generation's computer they produced a lot of heat they were not reliable they used the machine language which is low level programming language
they use the machine language which is a low level programming language. ठीक है. Now UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, US Census Bureau in 1951. To overcome these drawbacks, the second generation computer were developed. अब इन सब सारे जो drawbacks थे, इनसे निकलने के लिए क्या बनाया गया? इन सारे drawbacks से निकलने के लिए second generation computer को क्या किया गया? बनाया गया. Now let us see about the second generation computer. First generation computer के बारे में हमने देख लिया. अब इनकी जो साइज होती थी वो बहुत बड़ी होती. कल हमने देखा था, कल एक पिक्चर के थ्रू हमने इस चीज को देखा था कि वाकई जो इनकी साइज होती है वो बहुत बड़ी होती थी. Now, second generation's computer. In the late 1950s, the second generation's computer were introduced. So, in the late 1950 में क्या हुआ? Second generation's computer क्या हुए? Introduce हुए. Second generation's computer used the transistors in place of vacuum tube. In place of the vacuum tube, इन्होंने क्या use किया? They have used the transistor. जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हुए, उन्होंने इंस्टीड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, पहले क्या था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उन्होंने क्या यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया. बहुत भारी मात्रा में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया ना. अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ नहीं किया, इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया. द ट्रांजिस्टर वर फार सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब दैट अलाउड कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर. अब कंप्यूटर क्या होने लगा? स्मॉल होने लगा, फास्ट होने लगा और चीप होने लगा. कंप्यूटर क्या होने लगा? स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्या होने लगा? ज़्यादा रिलायबल होने लगा. नाउ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द असेंबली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ द मशीन लैंग्वेज. इंस्टीड ऑफ द मशीन लैंग्वेज दे स्टार्टेड यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज. IBM 140, Mark III and Leo are the example of this generations of computer. इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे. फीचर क्या हुए द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के? द साइज वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. साइज छोटी हुई. ऑपरेटिंग स्पीड क्या हुई? ज़्यादा फास्ट हुई. ऑपरेटिंग स्पीड क्या हुई? फास्ट हुई. द कॉस्ट गॉट रिड्यूस. जो कॉस्ट था वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया. ओके, कॉस्ट क्या हुआ? रिड्यूस हो गया. नाउ ड्रॉबैक. अभी भी क्या थे? कुछ ड्रॉबैक थे जो कि इन कंप्यूटर्स में होते थे, जैसे कि दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट. ये कंप्यूटर क्या करते थे? बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे. दे द स्पीड वॉज स्टिल स्लो. स्पीड अभी भी इन कंप्यूटर्स की क्या थी? स्लो थी. एंड द मेमोरी वॉज लेस. और मेमोरी क्या थी? मेमोरी बहुत कम थी. इन कंप्यूटर्स की जो मेमोरी होती थी बहुत कम होती थी. सो दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट. सबसे पहली बात, they produce lots of speed. The speed was slow, the memory was less. ठीक है. ओके. ना, तो अभी हमने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में, तो हमें पता चला कि जो ठीक है, हमने देखा कि दोनों कंप्यूटर जो थे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, उन दोनों में कुछ मतलब सेकेंड जनरेशन एक इम्प्रूवमेंट तो लाया, लेकिन अभी भी क्या उस कंप्यूटर के साथ कुछ ना कुछ फ्लॉज अभी भी क्या थे? जुड़े हुए थे. जैसे कि द साइज क्या थी? बहुत छोटी थी. उस कंप्यूटर की साइज वॉज वेरी स्मॉल. द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज फास्टर. द कॉस्ट गॉट रिड्यूस. कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट बहुत कम होते गए इन कंप्यूटर्स के. ओके. नाउ ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, अभी पढ़ा हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में. अच्छा, नाउ एक चीज और, यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा दैट IBM 140, मार्क III एंड लियो आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये सारे क्या थे? इस जनरेशन के कंप्यूटर के क्या थे? एग्जाम्पल थे. ठीक है, फाइन. नाउ moving ahead, let us see the other topic.
क्लास हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सेकंड जनरेशन के जितने कंप्यूटर्स थे उनके पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज होते थे, वो साइज के इतने बड़े होते थे, वो कंप्यूटर साइज में इतने बड़े होते थे कि उनको एक पूरे रूम की जरूरत होती थी। उस कंप्यूटर को अगर मुझे कहीं पे स्टेबल करना है तो मुझे क्या लेना होगा, पूरे उस रूम की जगह लेनी होगी। बट अब यहाँ पे पिक्चर देख के आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बड़ा तो था, अभी भी साइज उसकी बहुत स्मॉल नहीं हुई थी, हाँ, बट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले वो स्मॉल हुई थी, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले साइज उसकी क्या हुई थी, स्लो हुई थी, ठीक है। नाउ सो द फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों के पिक्चर हमने देखे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर यू कैन सी दैट अ मैन इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। नाउ लुक एट द साइज ऑफ द कंप्यूटर, इट इज स्टिल लाइक एन एल्मीरा, एक एल्मीरा के जैसी ये एक पूरी साइज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो अलग अलग से कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन कंपोनेंट ये क्या करते थे, दे डू द प्रोसेसिंग सॉरी, ओके। अब देखो एक चीज और है, दैट द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस द ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। दे डोंट यूज द वैक्यूम ट्यूब, इंस्टेड दे यूज ट्रांजिस्टर, दे यूज द ट्रांजिस्टर एंड दे डोंट यूज द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या इस्तेमाल किया, वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या इस्तेमाल किया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, ओके। नाउ लेट अस सी अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलो अभी थोड़ा आगे चले, let us find out the third generations of computer, ठीक है। now what is there in the third generation। अब देखो, अब जब हम सेकंड फर्स्ट पढ़ लिया, फर्स्ट में हमें पता चला कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, सेकंड देखा कंप्यूटर क्या होते थे, थोड़े से छोटे हुए, बट अभी भी जो उनकी साइज है वो क्या थी, अभी भी जो साइज है उन कंप्यूटर्स की अभी भी वो साइज बड़ी ही थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। नाउ क्लास एज यू कैन सी कि देखो धीरे धीरे यहाँ पे रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स आ रहे कंप्यूटर में। सबसे पहले ये यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले कंप्यूटर यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, बाद में इन्होंने क्या क्या कर लिया, वैक्यूम ट्यूब हटा के इन्होंने क्या कर लिया, वैक्यूम ट्यूब को हटा के इन्होंने ट्रांजिस्टर्स कर लिया, हाँ, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कि उन्होंने क्या यूज किया और उस कंप्यूटर की मेरिट और डीमेरिट क्या थी, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Okay. Now let us read about the third generations of computers. So 1965 to 1970. 1965 से 1970 तक. So in the mid 1960s, the development of the integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generations computer. In the mid of the 1960s, the development of the integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generations of computer. 1965 से 70 तक, मतलब 5 ईयर के दौरान ये कंप्यूटर क्या हुआ, बना और पॉपुलर हुआ। तो क्या था इस कंप्यूटर में ऐसा, अब यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का, और अगर अब आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की फर्स्ट लाइन पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चल रहा है कि अब आप यूज करते हो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या तो सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। So in the mid 1960s, the development of integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generation computer. तो अब तक ये ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम्स यूज करते थे, अब ये क्या यूज कर रहे हैं, they are using the integrated circuit. Now moving ahead, the transistors were replaced by the integrated circuit IC, also known as the semiconductor chip. जो ट्रांजिस्टर्स थे वो क्या हुए थे, they were replaced by the integrated circuit. Transistors were replaced by the integrated circuit, and they were also known as the semiconductor chips, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of the computer. This made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computer. Now the third generation's computer could carry billions of instruction in a few seconds. Third generation's computer क्या कर सकता था? They could carry billions of instruction in a few seconds. Billions of instruction को
फ्यू सेकेंड है, मतलब अब क्या हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई इन कंप्यूटर्स की, प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुई, अच्छी हो गई. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड. द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर. ओके क्लास नाउ. तो अब यहाँ पे बात हो रही है इंटीग्रेटेड सर्किट की. इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर चिप, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computer. So this increases the speed and efficiency of the computer. The third generation's computer could carry billions of instruction in a few seconds. The third generation's computer, what it can do, it can carry billions of instruction. ये क्या कर सकता था, बिलियंस ऑफ, मतलब अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत स्लो थे. ठीक है, वो कंप्यूटर्स क्या हुआ करते थे, वो कंप्यूटर्स बहुत स्लो हुआ करते थे, वो कंप्यूटर स्लो थे. सेकेंड जनरेशन में स्पीड थोड़ी बढ़ी बट स्टिल वो कंप्यूटर रिलायबल नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे. बट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उन्होंने क्या यूज़ किया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का जब इन्होंने यूज़ किया तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने के कारण हुआ क्या, कंप्यूटर की जो साइज थी वो रिमार्केबली बहुत छोटी हुई. कंप्यूटर की जो साइज थी वो बहुत छोटी हुई. एंड उसके बाद क्या हुआ, जब कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई तो फिर इट बिकम इजी टू कैरी. एंड उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, तो नाउ इट कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ डेटा इन सेकेंड्स. जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि मैं पढ़ाने के साथ साथ नेट सर्फिंग भी मैं कर ले रही हूँ. तो ये यही होता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है. कंप्यूटर क्या कर रहा है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को फ्यू सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. ठीक है, नाउ द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वॉज सो स्मॉल दैट दे कुड फिट इनटू द स्मॉल फाइल कैबिनेट. तो साइज कंप्यूटर्स कितनी छोटी होती थी कि अब ये कंप्यूटर्स एक फाइल कैबिनेट में क्या हो सकते थे, फिट हो सकते थे. दिस कंप्यूटर कैन बी फिटेड इनटू द size of small file cabinet. Example of third generation computer are IBM 360, ICL 1900, CDC, etc. Features of the third generation computer. Features क्या थे third generation computer के, the size became smaller, they were more reliable. The size became smaller, these computers were what, more reliable. अब इन computers के ऊपर क्या था, ये computer reliable थे, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था. इनके आंसर, ये जो भी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देते थे, वी कैन, हमें उसे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं होती थी. वो हम ये उम्मीद लगाई जाती है कि ऐसे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के आंसर करेक्ट होते हैं. तो अब जो कंप्यूटर्स आए उनमें क्या हुआ, साइज क्या हो गया, बहुत छोटी हो गई, साइज बिकम स्मॉल, दे वर मोर रिलायबल. अब ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स आने लगे. यूजर इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड मॉनिटर विद इंटरफेस विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यूजर इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड मॉनिटर. अब देखो अब क्या था, अब कीबोर्ड और मॉनिटर की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, डेटा, देखो कीबोर्ड की हेल्प से हम इनपुट दे सकते थे एंड देन कंप्यूटर के हेल्प से, मतलब मॉनिटर के हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द फाइनल रिजल्ट एज वेल. ठीक है, नाउ सो दे जनरेटेड द लेस हीट ऑल्सो. ये जो कंप्यूटर्स होते थे, इन्होंने, इनके अंदर एक और जो एक प्लस पॉइंट क्या था, दैट दे जनरेटेड द लेस हीट. इनकी हीट प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी. फाइन. So they were more reliable, the size became smaller and they generated the less heat. Heat की जो मतलब heat की generation इन computers में क्या थी, ये बहुत कम थी. Now they used high level language. अब ये जो computers थे ये क्या करते थे, they uses the high level language, COBOL and Fortran. COBOL Fortran को ये computers क्या करते थे, ये इस पे कोबल और फॉर्टन पे क्या करते थे, ये कंप्यूटर काम करते थे. अभी तक हमने देखा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता था, मतलब 0 और 1 के ही टर्म्स में उसको चीज़ें समझ आती थी. बट अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आगे के कंप्यूटर्स हैं, जैसे थर्ड जनरेशन तक, अब ये हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कोबल एंड फोर्टन. फोर्टन और कोबल पे अब क्या होने लगा था, अब काम होने लगा था. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ना आज की क्लास में हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक देखा. अब देखो, अब अगली क्लास में हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ द पीपीटी. So class, this is it for today, and now this is it for today. Now I will meet you in the next class.
Okay, so now the next thing is the third generations of computer. अब अगला topic is what? Third generations computer. So in the mid 19, अब देखो first generation पढ़ लिया, second पढ़ लिया. Now we have to read about the third generation. So in the mid 1960s, the development of the integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generations computer. Third generation computer के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था इन द मिड 1960. द ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस किया गया था? अब देखो अभी तक तो ट्रांजिस्टर थे, अब ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया गया था किस चीज के साथ? इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ. अब वहां पे भी क्या हो गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था. ठीक है, द ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप विच मेड द कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुड कैरी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड. ठीक है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो थे द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या करता था? दे कैन कैरी द बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड. द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वर सो स्मॉल दैट दे कुड फिट इनटू द स्मॉल फाइल कैबिनेट. अब इसकी ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन की, इनकी साइज इतनी छोटी होती थी कि इनको हम इजिली एक फाइल कैबिनेट में क्या कर सकते थे? रख सकते थे. एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन आर IBM 360, ICL 1900 एंड CDC एक्स्ट्रा. Now the next topic, next is features of the third generation computer. अच्छा, यहाँ पे देखो एक जो पिक्चर यहाँ पे शो की जा रही है. Let me connect the internet first. देखो यहाँ पे जो पिक्चर यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड सर्किट को दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही छोटा सर्किट होता है. आप खुद सोचो, आप जो मेमोरी कार्ड यूज करते हो वो कितना छोटा, एक आईसी इंटर वो चिप कितनी छोटी होती है ना. नाउ फीचर ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द साइज बिकेम स्मॉलर. ठीक है, साइज क्या होती है? छोटी होती जाती है. दे वर मोर रिलायबल. ये जो कंप्यूटर्स होते थे थर्ड जनरेशन के, ये क्या होते जाते हैं? ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं. यूजर इंटरेक्टेड विथ कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स विच इंटरफेस विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Users, what they do, they interacted with the keyboard and monitor. They interact the keyboard and monitor which interface with an operating system. Fine. Now third generation computers में जो सबसे बड़ी एक बात सामने आती है वो ये कि they generated the less heat. इन कंप्यूटर्स में एक बात जो है वो ये है कि इनकी हीट प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी, जो कि हमने फर्स्ट टू जनरेशन्स में देखा. फर्स्ट टू जनरेशन्स के कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम जो मतलब एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट. ज़्यादा भारी मात्रा में हीट वो प्रोड्यूस करते थे. सेम थिंग इज फॉर विद द सेकेंड जनरेशन. बट थर्ड जनरेशन तक आते आते ये प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉर्ट आउट होने लगी. ठीक है, यहाँ पे क्या था? थर्ड जनरेशन में क्या था? साइज छोटी हो गई. अब के जो ये कंप्यूटर्स हो रहे थे ये ज़्यादा रिलायबल थे. ठीक है, यूजर्स इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ठीक है, अभी हमारे पास क्या था? कल एक पिक्चर में दिखाया था कि कंप्यूटर था बट वहाँ पे कहीं भी कीबोर्ड या मॉनिटर नहीं दिख रहा था. बड़े बड़े बॉक्सेस हमें नजर आ रहे थे वहाँ पे, हमें बस और कुछ नहीं, बस बड़े बड़े बॉक्सेस नजर आ रहे थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अभी क्या था कि अभी जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए यहाँ पे कीबोर्ड और मॉनिटर क्या होने लगा? लोग कीबोर्ड और मॉनिटर का क्या कर सकते थे? यूज कर सकते थे डेटा को इनपुट करने के लिए एंड आउटपुट रिसीव करने के लिए. नाउ दे यूज द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक द कोबोल एंड फोर्टन. अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए इसमें क्या होने लगा? हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होता था लाइक कोबोल एंड फोर्टन. कोबोल एंड फोर्टन का क्या होता था? यूज होता था इन लैंग्वेजेस. अब के जो ये कंप्यूटर्स आ रहे थे. नाउ next is fourth generation computer. Fine, fourth generation computer. Now what about the fourth generation computer? The fourth generation of computer started in 1971 and it used the microprocessor. ठीक है, ये क्या यूज करता था? It used the
The fourth generation computer कब स्टार्ट हुआ? It started in 1971 and it uses the microprocessor. The size of the computer become very small. The size become very small as thousands of the integrated circuit were built into a single silicon chip. एक single silicon chip पे thousands of integrated circuit क्या हुए? बनाए जाने लगे. These computer become more powerful and they could be linked together to form networks. ठीक है, इन कंप्यूटर को क्या किया जा सकता था? They could be linked together. इन कंप्यूटर को लिंक कर किया जा सकता था to form the network. Fine. Now moving ahead, these computer become more powerful. ठीक है, ये तो इंटरनेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते थे? इन कंप्यूटर को यूज किया जा सकता था. इन कंप्यूटर का उपयोग हम कर सकते थे इंटरनेट बनाने में. Intel 4004, Macintosh, IBM 370 are the example of the fourth generation computer. Intel 4004, Macintosh, IBM 370 ये सारे क्या थे? एग्जाम्पल थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के. नाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज सी प्लस प्लस एंड जावा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज होती थी वो कौन सी थी? सी प्लस प्लस एंड जावा. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम पे क्या यूज हुआ? सी प्लस प्लस एंड जावा का यूज हुआ. नाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज द सी एंड सी. मतलब अभी आपने देखा कि इससे पहले कोबल और फोर्टन को यूज किया गया, बट अभी सी प्लस प्लस और जावा को यूज किया जा रहा था. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन फिट इनटू अ स्मॉल डेस्क और इवन ऑन द पाम ऑफ द हैंड. एक स्मॉल डेस्क पे क्या हो सकते हैं? वो आसानी से रखे जा सकते थे. IBM in 1981 IBM introduced its first personal computer for the home users. ठीक है, 1984 Apple introduced the Macintosh. IBM ने क्या किया? 1981 में पहला अपना पर्सनल कंप्यूटर लेके आया. IBM 1981 में अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लेके आया. ठीक है, अब उस कंप्यूटर के चलते क्या हुआ? अब पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या? अब लोग अपने कंप्यूटर्स अपने घरों में क्या रख सकते थे? अब लोग अपने कंप्यूटर्स अपने घरों में रख सकते थे. ठीक है. ना एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिन्टॉश इन 1984. एप्पल ने मैकिन्टॉश कब इंट्रोड्यूस किया था? 1984 में एप्पल ने क्या किया था? मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूस किया था. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. Let us see what are the features of the fourth generation computer. They use the microprocessor. First is what? They uses the microprocessor. They are multi-purpose computer. These computers are what? They are multi-purpose computer. They are accurate and reliable. They are what? These computers are what? Accurate and reliable. The operating speed is of these computers are what? Very fast. इन computers की जो operating speed थी बहुत ही फास्ट हुआ करती थी. ओके, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हमें पता चला कि ये कंप्यूटर क्या होने लगे थे? मल्टीपर्पज होने लगे. तब देखो चिप कितना छोटा एक चिप होता है, मतलब एक फिंगर पे आसानी से आ जा रहा है इतना छोटा चिप. तो कहाँ हम बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और कहाँ पे हम एक छोटे से चिप को यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, है ना? ना अब के ये जो कंप्यूटर्स है ये क्या होने लगे? दे बिकम मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल. ये कंप्यूटर ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होने लगे. तो ऑपरेटिंग स्पीड क्या होने लगे इन कंप्यूटर्स की? बहुत तेज होने लगी. ऑपरेटिंग स्पीड इन कंप्यूटर्स की क्या होने लगी? बहुत तेज. ठीक है, तो ऑपरेटिंग स्पीड क्या थी? बहुत फास्ट थी. नाउ अपडेट, लेट अस अपडेट अवर नॉलेज. A microprocessor is a small chip that does all the processing in a computer. Microprocessor is what? It's a small chip and it does all the processing in a computer. An integrated circuit is what? It's a small electronic device made out of a semiconductor material. The integrated circuit is also called the chip. Integrated circuit को हम और क्या बोलते हैं? Chip. ओके ओके क्लास, तो आज हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारे जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में एक बार पढ़ा. ठीक है, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा. नाउ व्हाट?
In the next class we will do the revision of this thing and we will do the exercise question. So this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class.